بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترونها عین اليقین. You shall surely see it with the eye of certainty. Then you shall surely be asked that day about the blessings. سورہ تکاثر کا اردو ترجمہ سماعت فرمائیے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. غفلت میں ڈالے رکھا تم کو آپس میں زیادہ دنیا کی ہوس نے، یہاں تک کہ تم دیکھیں گے خبروں کو. ہرگز نہیں، جلد ہی تم کو معلوم ہوگا. پھر ہرگز نہیں، جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا. ہرگز نہیں، کاش اگر تم جانتے علم یقینی سے. تم ضرور دیکھو گے دوزخ کو، پھر تم اس کو ضرور دیکھ لیں گے یقین کی آنکھ سے. پھر ضرور تم سے پوچھا جائے گا اس دن نعمت کے بارے میں. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. یہ تھے ڈاکٹر امان عبید صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، جو آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں جناب جہانگیر عالم صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ ابتدائی کلمات پیش فرمائیں. جناب جہانگیر عالم صاحب. جی السلام علیکم. آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی سر، میں جہانگیر عالم آپ کے سامنے بزم آزاد کا مختصر تعارف پیش کرتا ہوں. بزم آزاد ایک آن لائن فورم ہے جس کا مقصد اردو کے عظیم فلسفیوں اور شعراء کی تعلیمات کا مطالعہ کرنا اور ان کو فروغ دینا ہے. عظیم ماہر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کے فلسفے کو فروغ دینے کے لیے 2021 میں صدیقی محمد محمود سر کی سرپرستی میں بزم آزاد قائم کیا گیا. قومی و بین الاقوامی اراکین کی ایک سرشار ٹیم اپنے مطلوبہ مقاصد کے حصول کے لیے فورم کو مضبوط اور کامیاب بنانے کا کام کر رہی ہے. عظیم مفکرین کے کاموں اور تعلیمات کے مطالعے کو فروغ دینا اور پھیلانا بھی اس فورم کا مقصد ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کے کاموں کے مطالعہ اور فہم کو فروغ دینا، ادبی شخصیات کے کاموں اور تعلیمات کو آگے بڑھانے کے لیے لیکچرز منعقد کرنا، ان شخصیات کی تعلیم کو فروغ دینا جنہوں نے عظیم مفکرین کے کاموں اور تعلیمات کے مطالعہ میں حصہ لیا ہے. اردو ادب پر لیکچرز، مذاکرے، مباحثے، مطالعہ کا اہتمام کرنا وغیرہ بھی اس فورم کے اغراض و مقاصد میں شامل ہیں. یہ فورم ہر مہینے کے تیسرے بدھ کو ماہانہ پروگرام منعقد کرتا ہے. میں تمام نامور شخصیات اور اسکالرز کی موجودگی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ اردو ادب کی جوہر کو فروغ دینے کے لیے لگن کے ساتھ پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں. شکریہ. بہت بہت شکریہ جناب جہانگیر عالم صاحب نے بہت ہی خوبصورت اور مختصر تعارف پیش کیا. تقریباً آپ نے بزم آزاد کے ہر گوشے کا احاطہ کیا اور ہم اس پر آگے بھی بات کرتے رہیں گے کہ بزم آزاد جو کہ پروفیسر محمود صدیقی صاحب کے فکر کا ایک سرچشمہ یا فکر کی ایک اپج ہے جسے کہنا چاہیے. تو اور سر کی بہت دل سے خواہش تھی اور وہ اب بروئے کار آ گئی ہے الحمدللہ الحمدللہ. تو اس کی فکر کے بارے میں ہم گفتگو کرتے رہیں گے. اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس پروگرام میں آگے بڑھتے رہیں.
اور یہاں پر میں ڈاکٹر جرار احمد صاحب جو کہ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، ان سے گزارش کروں گی کہ وہ مولانا آزاد کی گرفتاریاں اور سزائیں اس موضوع پر اپنی گفتگو پیش کریں اور اپنا جو ان کا حاصل مطالعہ ہے وہ پیش کریں۔ ڈاکٹر جرار احمد صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر، ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ۔ السلام علیکم، بہت شکریہ میم۔ میں اس موقع پر اپنے استاذ محترم پروفیسر صدیقی محمد محمود صاحب، ڈین اسکول آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، استاذ محترم پروفیسر نسیم الدین فرید صاحب جو کہ اس مجلس اس بزم کے صدر بھی ہیں، اور دیگر تمام سینئر اور اپنے تمام یہاں پر مہمان کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے عنوان دیا گیا ہے مولانا آزاد کی گرفتاریاں اور سزائیں، اس حوالے سے مجھے گفتگو کرنی ہے۔ اس مناسبت سے مجھے عبداللطیف اعظمی صاحب کا ایک مضمون ملا ہے جو اپنے آپ میں بہت ہی معتبر اور ان تمام معلومات کا بہت ہی جامع طریقے سے احاطہ کرتا ہے۔ میں اسی مضمون کو یہاں پر بہت ہی وقت کی مناسبت سے اور اختصار کے ساتھ یہاں پر پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ تو پیش خدمت ہے مولانا آزاد کی گرفتاریاں اور سزائیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی مشہور اور مقبول ترین کتاب غبار خاطر کے خط 11 میں لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ قید و بند کی زندگی کا یہ چھٹا تجربہ ہے۔ پہلا تجربہ 1916 میں پیش آیا جب مسلسل 4 برس قید و بند میں رہا، پھر 1921، 1931، 1932 اور 1940 میں یکے بعد دیگرے یہی منزل پیش آتی رہی، اور اب منزل سے قافلہ بعد پیمائے عمر گزر رہا ہے۔ پچھلی 5 گرفتاریوں کی اگر مجموعی مدت شمار کی جائے تو 7 برس 8 مہینے سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس اضافے کے خلاف کوئی شکوہ کرنا نہیں چاہتا، البتہ اس کا افسوس ضرور ہے کہ وہ 7ویں حصے کی مناسبت کی بات مختل ہو گئی، معاملہ ہاتھ سے نکل گیا۔ لہذا اخبارات سے تحقیق کرنے کے بعد ذیل میں جملہ گرفتاریوں اور سزاؤں کی صحیح مدت تاریخ وار پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، رانچی کی نظر بندی اواخر مارچ 1921، سزا 9 فروری 1922، رہائی 6 جنوری 1923، مقدمے کی مدت شامل کر کے تقریباً 1 سال 1 ماہ۔ نمبر 3، گرفتاری 21 اگست 1930، رہائی 27 جنوری 1931، تقریباً 6 ماہ۔ نمبر 4، گرفتاری 12 مارچ 1932، رہائی 11 مئی 1932، 2 ماہ۔ گرفتاری 3 جنوری 1941، سزا 8 جنوری 1941، رہائی 4 دسمبر 1941، تقریباً 11 ماہ قید میں رہے۔ گرفتاری 9 اگست 1942، رہائی 15 جون، 9 سال 7 ماہ 24 دن، یعنی تقریباً 3519 دن۔ عمر کی کل مدت 68 سال 7 ماہ 9 یا 10 دن، یعنی 25,040 دن تقریباً۔ اس نئے حساب سے بھی نتیجہ وہی نکلتا ہے جو مولانا آزاد کے حساب سے نکلا تھا، یعنی کل زندگی کا 7واں حصہ جیل میں گزرا، گویا زندگی کے ہر 7 دن میں 1 دن قید خانے کے اندر گزرا۔ اس طرح مولانا آزاد کو جو افسوس تھا کہ وہ 7ویں حصے کی مناسبت کی بات مختل ہو گئی اور سبت کی تعطیل کا معاملہ ہاتھ سے نکل گیا، وہ اثر نو درست ہو گیا۔ انسان اکثر یہ سوچتا رہتا ہے کہ قید و بند کی زندگی گزارتے ہیں اور کب اکثر جب وفات پا جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ زندگی کی قید سے آزاد ہو گئے۔ تو کہیں نہ کہیں مولانا آزاد حقیقت میں یہاں سے قید میں رہ کر، قید خانے میں رہ کر وہ آزادی زندگی گزارتے تھے، آزادوں جیسی زندگی گزارتے تھے،
और इसी वजह से वो इतना काम किए, उन्होंने किया। शायद वो रिहा होते तो इतना काम न कर सकते थे, जिससे उर्दू अदब और हमारी कौम को इतना फायदा पहुंचा। आखिर में मैं अपनी बात इस शेर पे खत्म करना चाहूंगा कि आजाद को हो अपनी तबाही का क्या मलाल, आजाद को हो अपनी तबाही का क्या मलाल, किसको कयाम हस्ती नापायदार में। बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जरार साहब, आपने बड़े इख्तिसार के साथ अपने मौजू को मुकम्मल तौर से आपने उसका अहाता किया। ये बात सही है कि मौलाना आज़ाद ने गिरफ्तारी में आज़ादों से बेहतर ज़िंदगी गुजारी और क़ैदोबंद की सोबतें उनके लिए एक तरह से ऐश और राहत का सामान बन गई थी। किसी शायर ने कहा है कि इसको ही जंजीर कहे हैं शायद ये दीवाने लोग, इसको ही जंजीर कहे हैं शायद ये दीवाने लोग, जिंदा के दरवाजे पे ये जुल्फ सी जो लहराए हैं। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं ये ड्रामा जो है दरअसल इसमें जो शुरका हैं उनके नाम मैं पेश कर रही हूँ। सिद्दीकी मोहम्मद सलाहुद्दीन, शहजाद खान, मोहम्मद शरफुद्दीन, अमजद कादरी, और इस महबूब सिद्दीकी साहब ने इसको एक नया रंग दिया है और एक नए ज़माने के मुताबिक इसमें जो है कुछ इजाफे किए हैं और ये ड्रामा आपके सामने अब पेश किया जाएगा। मैं तमाम शुरका से गुजारिश करती हूँ कि वो ड्रामे की पेशकश के लिए आगे आए। ड्रामे का आगाज किया जाए। एहसानुल हक साहब, माजरत चाहती हूँ, एहसानुल हक साहब जो है वो ड्रामा निगार है इसके असल और वो शुक्रिया के मुस्तहिक हैं, लेकिन महमूद सिद्दीकी साहब ने इसमें कुछ तब्दीलियां की हैं और ये ड्रामा आपके सामने अब पेश किया जा रहा है। ड्रामा स्टार्ट किया जाए। अमजद साहब, सर आप वो नहीं बोल रहे कैप्शन? जी कैप्शन पढ़ने वाले थे। हाँ सलाम। ड्रामा आईने जमा मर्दा हलगोइयो बेबाकी। ड्रामा निगार एहसानुल हक, रेडियाई रूप और तब्दीली डॉक्टर मोहम्मद महमूद सिद्दीकी। किरदार हैं चपरासी वकील मजिस्ट्रेट मिस्टर गोल्डी, अबुल लैस मोहम्मद इस्माइल और मौलाना अबुल कलाम आजाद। स्टेज पर अदालत जमी हुई है। मजिस्ट्रेट कुर्सी पर बैठा है, सामने मिस्टर गोल्डी, अबुल लैस और मोहम्मद इस्माइल है। अदालत का चपरासी गला फाड़कर चिल्लाता है, कार्रवाई शुरू होने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मौलाना अबुल कलाम आजाद अंग्रेजी नहीं समझते। तुम मुकदमा पेश करो। यस मिला। मुल्जिम के खिलाफ मौजूदा मुकदमा जेर दफा 124 ताज़ीरात हिंद के तहत दायर किया गया है। ये मौलाना की 2 तकरीरों की बिना पर है जो मिर्जापुर पार्क कलकत्ते में की गई थी। पहले जलसे का मकसद 3 अशखास की गिरफ्तारी के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करना था और दूसरी तकरीर में मौलाना ने खिलाफत के बारे में अवाम को उनका फर्ज याद दिलाया था। ये दोनों तकरीरें उर्दू शॉर्ट हैंड में सरकारी रिपोर्टर ने लिखी। मैं ये भी वाजे कर देना चाहता हूँ मिलॉर्ड कि इस मुकदमे के लिए गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है। इसके सबूत के लिए मैं डिप्टी कमिश्नर गोल्डी को पेश करता हूँ। मिस्टर गोल्डी को हाजिर किया जाए। मिस्टर गोल्डी हाजिर हो, मिस्टर गोल्डी हाजिर हो, मिस्टर गोल्डी हाजिर हो। क्या आपको हुकूमत बंगाल ने इस मुकदमे को पेश करने का इख्तियार दिया है? मिस्टर गोल्डी, मिस्टर गोल्डी, क्या आपको हुकूमत बंगाल ने इस मुकदमे को पेश करने का इख्तियार दिया है? ओह यस। अच्छा, आमतौर पर जब आपको ऐसे जलसों की खबर मिलती है तो आप क्या करते हैं?
मैं अपना रिपोर्टर वहां भेजता हूँ। ठीक है। इस जलसे में आपका रिपोर्टर कौन था? उसे हाजिर किया जाए। अबुलेश मोहम्मद। अबुल्लेस को हाजिर किया जाए। अबुल्लेस मोहम्मद हाजिर हो। अबुल्लेस मोहम्मद हाजिर हो। अबुल्लेस मोहम्मद हाजिर हो। क्या नाम है तुम्हारा? अबुलेश मोहम्मद। अच्छा, तुम अपना तारुफ करा सकते हो? मैं गवर्नमेंट ऑफ बंगाल का शॉर्ट हैंड रिपोर्टर हूँ। मैं कसम कहता हूँ कि जलसे की कार्रवाई को मैंने पूरी ईमानदारी से लिखने की कोशिश की है। ठीक है, ठीक है। कोई और गवाह है? इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच मोहम्मद इस्माइल वहां खास ड्यूटी पर थे मिलॉर्ड। उनको बुलाया जाए। इंस्पेक्टर मोहम्मद इस्माइल हाजिर हो। इंस्पेक्टर मोहम्मद इस्माइल हाजिर हो। इंस्पेक्टर मोहम्मद इस्माइल हाजिर हो। क्या नाम है तुम्हारा? तुम अपना बयान दे सकते हो? मुझे मोहम्मद इस्माइल पुकारते हैं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बीएससी किया हूँ। उर्दू मेरा जबान है। अच्छा उर्दू जानता हूँ। अच्छा, ये बताओ कि जलसा किस गरज से हुआ था? तहरीक खिलाफत के लीडर को गिरफ्तार करने पर। अच्छा, तो सबसे खतरनाक तकरीर किसकी थी वहां? जी, मुल्जिम का तकरीर बहुत खतरनाक था। लोग नारे बोल रहे थे। नारे बोल रहे थे। जलसे में कितने लोग थे? जी, जलसे में 12,000 लोग थे। 12,000? अपने नोट जरा गौर से देखो। माफ कीजिएगा, 10,000 आदमी थे। ठीक है, ठीक है। तुम वहां बैठो। मौलाना, तुम कुछ कहना चाहता है? क्या तुम अपना बयान लाया है? लाया हूं मजिस्ट्रेट साहब। मैं अपना बयान साथ में लाया हूं, इस यकीन के साथ कि आप इसको समझ न सकेंगे, लेकिन सुनने में कोई मजाक नहीं। दुलानी है जज साहब। तारीख आज तक इसके मातम से फारिग ना हो सकी। हम इसमें हजरत मसीह जैसे पाक इंसानों को चोरों के साथ खड़ा देखते हैं। हमको इसमें सुकरात नजर आता है, जिसको सिर्फ इसलिए जहर का से उनका रुख फेर दिया। मिस्टर मजिस्ट्रेट, मुल्जिम ने अपने जिन कारनामों का जिक्र किया है वो कानून की नजर में जराइम है मिलॉर्ड। जराइम? वकील साहब, ये तो अपनी अपनी नजर की बात है, लेकिन इस तगासे ने मेरी तकरीर वो निहायत नाकिस, गलत और बाज मकामात पर बेमाने जुमलों का मजमुआ है। आजम में इसी तरह कायम रहे जिस तरह उनकी गिरफ्तारी के वक्त थी। वकील साहब, सवाल यह है कि अगर मैं ये ना कहूं तो क्या कहूं? मैं सियाह को सफेद कहने से इनकार करता हूं। जो चीज बुरी है या तो दुरुस्त हो जाना चाहिए या उसे मिट जाना चाहिए सकता है। मिलॉर्ड, मैं समझता हूं कि दुनिया का कोई मजहब राजुल वक्त कवानीन को तोड़ने का मशवरा नहीं देता। मेरे भाई, कानून क्या चीज है तुम समझते भी हो? तुम्हारी मर्जी का नाम कानून नहीं है। आजादी की राह में कुर्बानी व जाफरोशी मुसलमानों का कदीम वर्षा है। मुसलमानों ने वो आखिरी फैसला कर लिया है कि अपने हिंदू, सिख, ईसाई और पारसी भाइयों के साथ मिलकर अपने मुल्क को गुलामी से नजात दिलाएंगे। और हाँ, गुलामी से नजात की ये कोशिशें कौमी यकजहती को बरकरार रखते हुए हो सकती है, क्योंकि अगर आज आसमानों से एक फरिश्ता दिल्ली के कुतुब मीनार पर उतर कर ऐलान करे कि हिंदुस्तान को अभी आजादी मिल जाएगी, बशर्ते कि वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात करना छोड़ दे, तो मैं यकीनन ऐसी आजादी को रद्द कर कवानीन को तोड़ने का मशवरा नहीं देता। मेरे भाई,
सर कोई भी नहीं देख रहा है. नहीं है कोई भी तो बंद कर देते हैं. हाँ ये देखो. और 100 के बाद आने रहे. 100 के बाद नहीं आ रहे. गुजरी है जिसमें मैंने गवर्नमेंट के मजालिम का ऐलान न किया हो. मेरी उम्र 18 बरस की थी. जी हाँ, सिर्फ 18 बरस की, जब मैंने इस राह में तकरीर व तहरीर शुरू की थी. मैंने अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा यानी अहले शबाब सिर्फ इस मकसद के इश्क में कुर्बान किया है. ये तो मेरी जिंदगी का दायमी मकसद है वकील साहब. मैं सिर्फ इसी काम के लिए जी सकता हूँ. इन तब्दीलियों से इकरार के बाद मैं सीआईडी के रिपोर्टर अबुल लैस से कुछ पूछना चाहता हूँ. अबुल लैस, जवाब दो. अबुल लैस, क्या तुमने मशहूर फ्रांसीसी अदीब विक्टर ह्यूगो का नाम भी सुना है? जी नहीं. बात छू है, तुमने उसे एक बार फिर कत्ल कर दिया है. मैंने अपनी तकरीर में उसका एक कौल नकल किया था. तुमने उसे इस तरह बयान किया है कि आजादी का बीज कभी बारावर नहीं हो सकता जब तक कि धर्म के पानी से उसकी आबियारी ना हो. ये धर्म का पानी क्या चीज होती है अबुल लैस? जुमला असल में ये था कि आजादी का बीज कभी बारावर नहीं हो सकता जब तक जुल्म के पानी से, समझे अबुल लैस, जुल्म के पानी से उसकी आबियारी ना हो. तुम लोगों की बदकिस्मती ये है कि तुम ना तो धर्म से वाकिफ हो और ना जुल्म से. जल्दी में रह गया होगा. जल्दी में रह गया होगा. एक जगह और भी तुम जल्दी में थे. तुम लिखते हो उन्होंने जेल खाने की मुसीबत को कम किया है. मुमिल सी बात है. जुमला गालिबन इस तरह होगा, उन्होंने जेल खाने की मुसीबत को बर्दाश्त किया है. नहीं आ रहे हैं. मुश्किल ये है कि अंग्रेजी अफसरान तुम जैसे लोगों को अहले ज़बान समझते हैं. उनके नजदीक हर वो आदमी जो अंग्रेजी जबान से है और अदालतों में सनद के तौर पर पेश किया जाता है. अब इसके कि मैं अपना बयान खत्म करूं, अपने हम जो दुआ मांगूंगा जो पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर मांगी थी कि खुदाया इन पर राह खोल दे, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं. और आप मिस्टर मजिस्ट्रेट, आप ज्यादा से ज्यादा जो सजा आपके इख्तियार में है बिला तामुल मुझे दीजिए. मुझे शिकायत या रंज का कोई एहसास ना होगा. मेरा मामला तो पूरी मिशनरी से, किसी एक पुर्जे से नहीं है. मैं जानता हूं कि जब तक मशीन नहीं बदलेगी पुर्जे अपना फेल नहीं बदल सकते. मिस्टर मजिस्ट्रेट, अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा. ये तारीख का एक दिलचस्प और इबरत अंगेज बाब है जिसकी तरतीब में हम दोनों यकसा तौर पर मजबूर हैं. हमारे हिस्से में इशरत कौन है? जी हाँ, हमारे हिस्से में ये मुजरिमों का कठेरा आया है और तुम्हारे हिस्से में मजिस्ट्रेट की कुर्सी. स्कूल टीचर. मौलाना, क्यों? अदालत इस कुर्सी का तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता. मैं तस्लीम करता हूँ कि इस काम के लिए वो कुर्सी भी उतनी ही जरूरी है जिस कदर ये कठेरा. आओ आओ, इस यादगार और अफसाना बनने वाले काम को जल्द खत्म करें. मौर्रिख हमारे इंतजार में है और मुस्तकबिल कब से हमारी राह तक रहा है. हमें जल्द जल्द यहाँ आने दो और तुम भी जल्द जल्द फैसला लिखते रहो. अभी कुछ दिनों तक ये काम जारी रहेगा और फिर मिस्टर मजिस्ट्रेट, वो वक्त आएगा जब हम लोगों का तबादला करेंगे. तुम यहाँ इस कठेरे में होंगे और हम वहां उस कुर्सी पर, और तुम्हारे चेहरों पर तुम्हारे अमाल की फटकार होगी. फटकार. मौलाना, तुम पछताएगा. मौलाना, तुम जरूर पछताएगा. अदालत बर्खास्त किया जाता है. मौलाना आजाद पर चला ये तारीखी मुकदमा तो यहाँ खत्म हुआ.
लेकिन जिंदगी के मुकदमात कभी खत्म नहीं होते। जिंदगी हमेशा रवा दवा रहती है। 15 अगस्त 1947 अब को आपका मुल्क हिंदुस्तान लोगों की बात है। आजाद हुआ और मौलाना अबुल कलाम आजाद को हाउसफुल है। पहला वजीर तालीम बनाया गया। उन्होंने मुसलसल जांफशानी, मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी और मेहनत के साथ मुल्क में एक साले इनकलाब बर्पा करने की कोशिश की। लेकिन कब तक? सन 1958 में मौलाना अबुल कलाम आजाद अपने मालिक के बेटी से जा मिले और फिर क्या कहा करते थे मौलाना आप? यही ना कि मुल्क को गुलाम बनाने, यहाँ की दौलत लूटने और तबाहकारी मचाने वाले फिरंगी और उनकी हुकूमत और उस हुकूमत का साथ देने वाले सब के सब, हाँ सब के सब तागूती ताकतें, तागूती ताकत, यही कहा करते थे ना हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब देखिए आप तो रुखसत हो गए यहाँ से अपनी खबर में आराम की नींद का मजा लेने के लिए। अब देखिए अब हम जिन्हें आप तागूत की ताकत कहा करते थे ना, हाँ अब हम इस मुल्क का क्या हाल बनाते हैं। मौलाना आप तो बस अपनी कब्र में आराम कीजिए और तमाशा देखते रहिए। हाँ तमाशा, गुर्बत, बेरोजगारी, जहालत, रिश्वतखोरी, काला बाजारी, फिरका वाराना मुनाफरत, फसादात, लड़कियों और औरतों के खिलाफ जराइम, मौलाना इन सब के नंगे नाच से आप अपनी खबर में महसूस होते रहिए। महसूस होते रहिए। समझ रहे हैं ना मौलाना? बड़ा मजा आएगा जब आप अपने वतन अजीज को इस तबाही का शिकार देखेंगे और कुछ भी नहीं कर सकेंगे मौलाना। क्यों? क्योंकि आप तो मर चुके मिट्टी में मिल चुके। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तुम सारी ताकूती ताकतें मिलकर भी मेरे मुल्क हिंदुस्तान जन्नत निशान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम लोग इसका बाल भी बिका नहीं कर सकते। क्यों? इसका बाल भी बिका नहीं कर सकते। क्यों? कौन रोकेगा हमें? कौन रोकेगा? आप? आप तो मर चुके। नूर हक शमा इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक शमा इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन? उसे मिटा सकता है कौन? तो आपका खुदा जमीन पर, आपका खुदा जमीन पर बनफ्स नफीस आकर इस मुल्क को बचाएगा। क्यों मौलाना? बनफ्स नफीस आकर बचाएगा। मेरा खुदा रब्बुल आलमीन है। मेरा खुदा रब्बुल आलमीन है। उसको जमीन पर आने की क्या जरूरत है? वो इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है। नहीं, हरगिज नहीं। आप इस उम्मीद पर मत रहिए। हम तो अपना काम करके ही रहेंगे। देखिए कौन रोकता है? हमें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे ये शैतानी मंसूबों को हमारी दानिशगाहें, हमारी हमारी जामियात और इन जामियात में इल्म की रोशनी से फैज़याब होने वाले नौजवान लड़के और लड़कियां अपने असलदा की क़यादत में रोकेंगे। वो आगे बढ़ेंगे। अब इनकलाब का परचम इन नौजवानों के हाथों में होगा। वो इस मुल्क में अमन कायम करेंगे, फिरकावाराना हमाहंगी का माहौल बनाएंगे और इस मुल्क में एक खुशगवार इनकलाब बर्पा करेंगे। उच्च के अब्बस में जहां का और ही अंदाज है। उच्च के अब्बस में जहां का और ही अंदाज है। मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज है। तेरे दौर का आगाज है। तेरे दौर का आवाज बढ़ाइए। रानी की आवाज बढ़ाइए, आवाज नहीं आ रही है।
आ रही है। आवाज आ रही है ना? जहांगीर भाई, हेलो, जी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए। आप इसको लाइव स्क्रीन शेयर मत करिए, टाइप करके अब आ रही आवाज। इनकी आवाज पैकेट पे आ रही है। बताओ प्लीज। जी सर, बोलिए, स्टार्ट कीजिए, बोलिए, कार्रवाई आगे बढ़ाइए। सिद्दीकी सर अनम्यूट करके बोलिए। हाँ रोक दें अब किसी दूसरे ने प्रोग्राम को किया आगे बढ़ाएं। जी, डॉक्टर समीना ताबिश मैडम आगे बढ़ाएं। जी जी। किसी दूसरे ने चला दी थी। अभी आप लोगों ने ड्रामा तो नहीं कर रहा है। सुना, समाप्त फरमाया, और उसके निकाल देता हूँ। आप लोगों ने किसी ने डबल चला रखा है, इसमें खोल दिया तो वो चल रहा था। सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब, हमारी एंकर किसी टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से शायद लीव हो गई हैं। आप जो है ड्रामे के सदाकारों का तारुफ करवा दीजिए इस दरमियान। किसी को निकालना पड़ेगा सर। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अभी आपने एक को निकालो, जो बच्चा रेडियो देखो। ड्रामा समाप्त किया है, उसमें जो किरदार आपके सामने रहे, जिसमें चपरासी का किरदार इसको हमारे निकाल लो। अजीज अमजदुद्दीन कादरी, जो औरंगाबाद के बुरहान नेशनल उर्दू हाई स्कूल काजी में कौन है? उर्दू और तारीख के मौलिम हैं, उन्होंने अदा किया। वकील की हैसियत से मैं सिद्दीकी मोहम्मद सलाहुद्दीन, प्रिंसिपल इकरा उर्दू बॉयज हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, मेरी आवाज आपने सुनी। मजिस्ट्रेट की हैसियत से डॉक्टर शहजाद खान मोइनुल उर्दू हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने अपनी आवाज दी। मिस्टर गोल्डी डॉक्टर शरफुद्दीन साहब, ये प्रिंसिपल हैं शिबली अल्लामा शिबली उर्दू हाई स्कूल के, उन्होंने अपनी आवाज यहाँ पर दी। और अबुल्लैस का किरदार भी मोहम्मद शरफुद्दीन साहब ने ही अदा किया। मोहम्मद इस्माइल, इनकी भी आवाज अमजदुद्दीन कादरी ने दी है, सदाकारी की है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद की सदाकारी आप सभी बखूबी जानते हैं कि उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद महमूद सिद्दीकी साहब ने सदाकारी की। तो ये सदाकारों का मुख्तसर तारुफ था। डॉक्टर समीना ताबिश मैडम, ये कौन है? डॉक्टर समीना ताबिश मैडम हैं? नहीं सर, नहीं सर, टेक्निकल डिफिकल्टी। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा लगता है कि किसी टेक्निकल दुश्वारी की वजह से जुड़ नहीं पा रही हैं वो। मैं इस प्रोग्राम पर तबसरा करने के लिए दावत देता हूं। सबसे पहले डॉक्टर मीनू मैडम को, अगर वो हमारे साथ जुड़ी हुई हो। डॉक्टर मीनू। नहीं सर, डॉक्टर फिरोज को बुला लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ें। अब बारी है डॉक्टर फिरोज आलम साहब की। डॉक्टर फिरोज आलम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब मैं आप तमाम लोगों को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं कि एक नहायत शानदार प्रोग्राम पेश किया गया
اور اس کا اختتام بھی بہت ہی اچھے نوٹ پر ہوا. کچھ کے میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. اندھیرے بہت بڑھ گئے تو کیا ہوا، ہمیشہ جو ہے رات کی تاریکی ختم ہوتی ہے اور صبح کا سویرا نمودار ہوتا ہے. مولانا آزاد ایک بےحد اولو العزم اور مستقبل شناس رہنما تھے، قائد تھے، عالم تھے، اور انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو صحیح راستہ دکھایا. اور اس ڈرامے کے تحت آپ لوگوں نے جو میسج دینا تھا کہ ہمارے تعلیمی ادارے کس طرح سے اور استاد اور اس کے شاگرد مل کر اس اندھیرے کو جیت سکتے ہیں، اس اندھیرے کا خاتمہ کر سکتے ہیں، یہ دراصل آج کی ضرورت ہے اور اس کو بہت ہی خوبی کے ساتھ اس میں پیش کیا گیا ہے. مجھے ڈرامے کا جب آخری حصہ چل رہا تھا، جب مولانا آزاد کے موت کی خبر سنائی جا رہی تھی، اس وقت فیض کی نظم یاد آ رہی تھی. یہ داغ داغ اجالا، یہ شبد دیدہ سحر، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کے مل جائے گی کہیں نہ کہیں شفق کے دشت میں تاروں کی آخری منزل کہیں تو ہوگا شبد سوچی موج کا سر. تو اس طرح کی جو صورت حال تھی، مولانا آزاد نے جو خواب دیکھا وہ کس طرح سے وہ ٹوٹا اور بکھرا اور ریزہ ریزہ ہوا، لیکن انسانیت پر اعتبار تھا انہیں اور اس کے لیے ہمیشہ وہ کام کرتے رہے. جی السلام علیکم سر. جی سر، یہ سر میں لے رہا ہوں، کبھی کبھی نہیں آئی ہے. اوکے سر، یہ ہم جیسے یہاں آ رہے ہیں میں وہ لے لوں گا سر، میں انہیں کا ویٹ کر رہا ہوں سر. صاحب نے وہ بھی تمام جتنے بھی لوگوں نے اس میں شرکت کی، صدیقی کلاؤدین صاحب، شہزاد خان صاحب، امجد قادری صاحب، محمد شرف حسین صاحب اور ہمارے استاد محترم ڈاکٹر محمود صدیقی صاحب، میں آپ تمام کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آن لائن اس ڈرامے کی پیشکش کے لیے جی خوش ہو گیا. خود کم وقت میں بغیر کسی تکنیکی خرابی کے تمام بہت ہی اچھی طرح تمام لوگوں نے پیش کیا. اور اس کا عنوان آئیے جمع مردی حقوری مطلبہ کی. دراصل زندہ قومیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے اسلاف کے کارناموں کو یاد رکھتی ہیں اور ان سے سبق سیکھتی ہیں. اور ضرورت اس کی بات کی ہے کہ ہمارے جو اخلاق رہے ہیں، ہمارے جو آبا اجداد ہیں، ان کے کارناموں کو نئی نسل تک پہنچانے کی کوشش کی جائے. میں صدیقی محمد محمود صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو جو قصب آزاد میں جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ہاں اس میں جو ہے نا ڈاکٹر شہناز خان میڈم بھی ہیں، دونوں میں سے جو بھی ہوں، ڈاکٹر خان شہناز بانو، کیا آپ جڑی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ؟ آن کرو اس کو، ہٹاؤ سر. ڈاکٹر خان شہناز بانو سر میم نہیں جڑ پائی ہیں. اچھا ڈاکٹر مینی دو دونوں بھی نہیں ہے نا؟ جی نہیں سر، دونوں بھی نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے. نہیں سر، لگانا بھائی ایک بار بات کر لینا ان سے نا. حاضرین میں سے اگر جو خیال کرنا چاہیں. ہاں اس وقت جو حاضرین موجود ہیں ان میں سے کوئی اظہار خیال کرنا چاہیں تو پہلے وہ کر لیں، صدر محترم کو دعوت دیں گے. مت کرو. جی میں کر سکتی. السلام علیکم. السلام علیکم، میں رانا سعید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مت کرو، لے آئے اور کرو. جی آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارکباد. ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ ڈرامہ پیش کیا ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے حقیقت میں یہ منظر، یہ معاملہ ہمارے سامنے چل رہا ہے. آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارکباد. اور جو ادب میں ہم لوگ جو ہے ٹیکنالوجی سے ایسے جڑ گئے کہ ادب کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. آج ہم ادبی یعنی ہمارے اندر وہ ادب اور وہ ثقافت جو ہے وہ ہم اس کو فراموش کر چکے ہیں. آج ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ ہمارے اندر کئی قسم کی صلاحیتیں پیدا کرتا ہے. اس کے لیے میں آپ تمام لوگوں کی بہت ہی شکر گزار ہوں. بہت بہت مبارک ہوں. جزاک اللہ خیر.
जी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह। डॉक्टर जहांगीर, may I request you to please mute all the participants except one who is speaking. ओके सर। सर ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब भी अभी हैंड रेस किए थे, शायद वो भी कुछ इज़हार ख्याल करना चाह रहे हैं। हाँ, आप दावत दे दीजिए उनको। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब मौजूद हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सबसे पहले तो बज़्म आज़ाद के तमाम अरकान और जिन्होंने इस बज़्म को कायम किया है, उन सबको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। जैसे अभी मैडम ने खुद कहा कि एक अदबी शऊर हम लोगों के अंदर बेदार हो रहे, 2 महफिलों से हम मुस्तकिल देख रहे हैं, और जो एक क्या कहें जमूह सा आ गया था हमारे अंदर, लेकिन इस बज़्म ने उसको हमारे अंदर की बेचैनी को और बढ़ा दिया। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। मुबारकबाद के लिए अल्फाज भी नहीं है, मुबारकबाद इतनी किस तरीके से दी जाए, मैं एकदम ओवरवेल्ड हो गया हूँ सब चीज़ों से। मज़ीद ऐसी महफिलें सजाने की आप तमाम लोगों से उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। अब आखिर में मैं बहुत ही इज्जत व एहतराम के साथ आज की बज़्म के सदर नशीन प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद साहब को दावत देता हूं कि वो हमें सदारती खुतबे से नवाजें। प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद साहब। प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद साहब, बानी व सदर बज़्म आज़ाद, इस प्रोग्राम के आज के इजलास की कन्वीनर डॉक्टर समीना ताबिश साहिबा, डॉक्टर जलाल अहमद साहब, ड्रामे में जिन सदाकारों ने हिस्सा लिया तमाम हज़रात, डॉक्टर फिरोज आलम साहब, और ऑनलाइन प्रोग्राम से जुड़े हुए तमाम असातिज़ाए किराम और अजीज़ तलबा व तालिबात, सबकी खिदमत में मेरा पुरखुलूस सलाम। ये वाक़या है कि बज़्म आज़ाद के ज़रिए तलबा के अंदर, नौजवानों के अंदर